औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज करने लगी हूँ मैं चैप्टर 14 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड from one part of body to other part. Which gases? Oxygen, which is the sign of life, is necessary to each and every part of the body, and when every cell of the body respire, then what happened, the carbon dioxide produced, and this carbon dioxide is then transported from all parts of body back to lung. Mean oxygen की transport होती है to all parts of body from lungs, और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम all cells back to lungs, because when cell respire, then what happened, some waste product produced like carbon dioxide, water, which are harmless, and though harmless but must be removed from the body. So we are going to see how these gases are transported in the body from the lungs to all parts, that's oxygen, and from all parts back to lung, that carbon dioxide, right? अच्छा जी. Now the what is the human body is made up of around about 60 ट्रिलियन सेल, करेक्ट कर लेना मुझे, आई थिंक सो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं. So what is the transporting material in the body, human body? We transport the gases. Transporting material is blood. Let's see first the transport of oxygen. You know that 97% of oxygen is transported by solid part of the blood, that's by RBCs. RBCs in which form? In form of oxyhemoglobin. यहाँ आपको पता होगा कि RBCs contain respiratory pigment hemoglobin, which has great love for oxygen. तो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है. कैसे बाइंड होती है ऐसा ऐसा देखेंगे नहीं. Oxygen bind with the hemoglobin and form the oxyhemoglobin. So oxygen from the lungs, that's from alveoli, is transported through the blood to all parts of body in form of oxyhemoglobin, 97%. 3% of oxygen is transported in dissolved form through the blood plasma. Plasma liquid part, RBC solid part. Oxygen bind with the hemoglobin when the partial pressure of oxygen is high. When partial pressure of oxygen is high, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई कहाँ पे होता है? लंग्स में. लंग्स की कौन सी जगह पे? दैट्स इन द एल्वेलाई. तो अगर पूछिए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पायरेशन, तो actual site of respiration is alveoli. Respiration is a complex process, and one of the first step of the respiration is exchange of gases. Exchange of gases होती है alveoli में, and we inhale air leads to lungs, so that's why the pressure of the oxygen is greater in the lungs, in the alveoli. So HP bind with the oxygen when partial pressure of oxygen is high, जो कि alveoli में होता है. ऑक्सीहेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, बट इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. कहाँ बाइंड होती है? इन द एल्वेलाई. यू नो एल्वेलाई क्रैब लाइक स्ट्रक्चर इन द लंग्स. One lung, I think so, contains 700 million alveoli, and each alveolus is richly supplied with blood capillaries. तो blood capillaries alveoli से ऑक्सीजन blood capillaries में चली जाती है और बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देती है, राइट. सो लेकिन कैसे? जब रिएक्शन होता है तो एवरी रिएक्शन नीड एन एंजाइम. ये चीज़ याद रखना कि एंजाइम विच इज़ नीडेड फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन, उस एंजाइम को कहते हैं एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक है. सो लुक, ये आपको पता है, आई थिंक सो मालूम है सारे बच्चों को ये कि हीमोग्लोबिन इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. reddish color of the blood is due to hemoglobin, made up of 4 polypeptide chain,
ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन वन हीम ग्रुप। हीम आयरन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन में, 4 हीम जो है मॉलिक्यूल है आयरन के, 4 जो हैं वो उधर पड़े हुए हैं एटम पड़े हुए हैं, हीम एटम। तो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है जब तो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Hb4O2 या 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनता है HbO2। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। याद रखना हमेशा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब पता नहीं मैंने ये साइन सही लगाया कि नहीं, कोई मैथ्स में इतनी मैं ठीक नहीं हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखें अगर तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 20 मिलीलीटर जो है वो ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ होती है? ऑक्सीजन बाइंड हीमोग्लोबिन के साथ होती है। तो हम देखते हैं कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन होती है 15 ग्राम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकती है। याद रखो ऊपर क्या मैं कह रही हूँ कि 100 मिलीलीटर ब्लड कंटेन 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाइंड होती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। 15 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन विद 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप खुद देख लें, अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन होती है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 15 ग्राम में कितनी ऑक्सीजन कंबाइन हो सकती है? 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन कंबाइंड हो सकती है? तो वो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लिखा हुआ है कि 100 बुक्स कहती हैं 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में होती है 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कब होती है? जब फुली सैचुरेटेड होता है ये ब्लड ऑक्सीजन से। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो 100 मिलीलीटर ब्लड में होती है ऑक्सीजन कितनी? 19.4 मिलीलीटर। साइड पे कैलकुलेशन करके बताई हुई है कि 1 ग्राम Hb कैन कंबाइन विद 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के आप चेक करके निकाल लें और देख लें कि कितनी बनेगी कितनी? 19.4 मिलीलीटर बनेगी ऑक्सीजन। किस में? 100 मिलीलीटर ब्लड में। ऊपर लिखा है 100 मिली ब्लड में होती है 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जब फुली सैचुरेटेड हो। नॉर्मली इतनी पाई जाती है 19.4। ये अक्सर MCQ में आ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने की इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू द ब्लड। ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो गई कि कितनी इसमें वो होती है। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू सी नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कि ये कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हर सेल रेस्पायर करता है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी तो वो होगा क्या? एनर्जी बनेगी, तो वो साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। वन ऑफ द वेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पहुंचाना है लंग्स की तरफ ताकि ब्रीद आउट हो जाए, एक्सपेल हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। बट द वेज थ्रू विच द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड, 3 वेज आपकी बुक्स कहती हैं। आप अगर चेक करें तो देयर आर 3 वेज बाय मीन्स ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। Number 1 is in form of bicarbonate ions, and number 2 is in form of carboxy
कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कमाल देखें। इसको हम हीमोग्लोबिन को फिर मुनाफे की कह सकते हैं कि उधर ऑक्सीजन के साथ भी मिलती है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मिलती है। कमाल है भाई। अच्छा, लेट्स सी वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू लंग इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एज अ बाइकार्बोनेट आयन। ये चेक करने लगे हैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन थ्रू द ब्लड। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बैक टू लंग इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, होता क्या है? लुक, व्हेन सेल रेस्पायर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, एक वन वेस्ट मैंने बताया, बाकी आप लोगों को पता है वाटर भी प्रोड्यूस होता है, प्लस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट के और कौन सा वेस्ट पैदा होता है। ठीक है, सेल रेस्पायर carbon dioxide produced must be transported back to lungs, so it must be expelled out, no need to the body. Carbon dioxide from the cells leads to the blood, diffuses in the blood. चेक कर लें, ब्लड में जाती है एंड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इट लीड्स टू द आरबीसी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आरबीसी एक ये बनाया है, बाहर निकाल के बनाया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेल से गई उस ब्लड में, ब्लड से किस कंपोनेंट में गई? आरबीसी में। चेक करें ज़रा, विद इन द आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाता है। किस में बन जाता है? आरबीसी में बन जाता है H2CO3। ठीक है, H2CO3 आरबीसी में बन जाता है, बट कार्बोनिक एसिड इज़, यहाँ देखें इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द आरबीसी, ये याद रखें आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्या बना? अनस्टेबल कंपाउंड कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, आरबीसी में बन रहा है, ये याद रखना। कार्बोनिक एसिड इज़, इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अल्लाह की शान देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये टूट जाता है फ़ौरन ही। H2CO3 डिसएसोसिएट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड HCO3 आयन। याद रखना, बना भी आरबीसी में है कार्बोनिक एसिड, टूटा भी आरबीसी में है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा जी, अब जब टूटता है कार्बोनिक एसिड H+ और HCO3 बनता है, तो इंक्रीज रेशो हो जाता है हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन। तो जब इंक्रीज रेशो हो जाए H+ आयन का, तो क्या होता है? pH इंक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन, व्हेन कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिसोसिएट, ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होते जाते हैं आरबीसीज़ में, तो pH इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, pH ब्लड का इंक्रीज़ हो जाता है। जब इंक्रीज़ हो जाता है, इट्स डेंजरस। देन व्हाट हैपेंड, जहाँ पे आती है जी हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। ठीक, हो रहा है सब कुछ, कहाँ पे हो रहा है? उधर हो रहा है एल्वेलाई में, ये भी। अच्छा जी, हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयन, एक्ट एज ए बफर, combine with the hydrogen ion within the RBC, as a result of फॉर्म क्या बना देती है कि हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, चली जाती है बॉडी पार्ट्स को। हीमोग्लोबिन क्या बनता है? HB, ये HB4O2 के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है क्या चीज़? हाइड्रोजन आयन, जो आरबीसी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब चलो, ये तो इसके साथ हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर। तो जब H+ आयन के जो है हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता जाता है, तो फिर क्या होता है कि pH ऑफ ब्लड जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। क्या नॉर्मल हो जाती है? नॉर्मल ब्लड की pH जो है 7.4 है। कैसे? बाय बफर मैकेनिज़्म। कैसे? कि H+ आयन मिल जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए, अगर आरबीसी से H+ आयन तो मिल गए हीमोग्लोबिन के साथ, ये तो कम हो रहे हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन तो उधर ही हैं। HCO3 कैसे बने थे? जो कार्बोनिक एसिड के टूटने से बने थे। H+ को तो पकड़ लिया हीमोग्लोबिन ने और एक्ट एज ए बफर फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड बना दिया। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन का क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयन जो हैं ये क्या करेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ देखें कि बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी, ये मैंने फिर बनाया हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन कम्स आउट इन द ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द आरबीसी। जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएंगे तो प्लाज्मा से क्लोराइड जाएगा आरबीसी के अंदर बैलेंस करने के लिए। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं इसकी मेम्ब्रेन पे, क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है, आप ज़रा बुक से देख लेना। बाइकार्बोनेट आयन बाहर आए, क्लोराइड आयन अंदर आए, तो ये शिफ्टिंग ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द आरबीसी टू प्लाज्मा एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू द आरबीसी, इट इज़ कॉल्ड एज, अगर आप बुक देखना तो उसमें लिखा होगा हैम्बर्गर फिनोमेना, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन थ्रू क्लोराइड प्रोटीन कैरियर चैनल inside the RBC, it is called as हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है। अब अंदर क्या होता है, जब भाई बाहर से प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आ गए आरबीसी में, तो आरबीसी में क्लोराइड आयन पोटेशियम के साथ मिलके, विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आरबीसी फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, और प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर आए हैं वो सोडियम के साथ मिलकर बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह आयन्स भी बैलेंस रहते हैं, राइट। तो वही बात कि गैसेस की ट्रांसपोर्ट उस वक्त होती है जब उनका पार्शियल प्रेशर हाई हो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा तो हीमोग्लोबिन उसके साथ मिल जाएगी। तो हमने देखा कि 70% तो कैरी होती है एज ए बाइकार्बोनेट आयन, 23% ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग इन फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द ग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Only 7% of the carbon dioxide is transported in a dissolved form through the plasma. Although it is an inefficient way, but कुछ ना कुछ तो मदद करती है ट्रांसपोर्ट में। ये डिज़ोल्व फॉर्म प्लाज्मा मदद करता है थोड़ा बहुत डिज़ोल्व फॉर्म में उसको पहुंचाने में, राइट। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कहाँ कहीं मेरी कटिंग हुई है, देखते हैं कि कैसा लगता है आपको। हैम्बर्गर फिनोमेना जो होता है वो शिफ्टिंग ऑफ द बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी टू द प्लाज्मा एंड शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा इन द आरबीसी, इसको कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना। और हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर मेंटेन द pH, नॉर्मल pH of blood is 7.4. That's all. Allah Hafiz.